Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying class 9th chapter Force and Laws of Motion, backside exercise solution. Chapter and exercise. Read question number 1 very carefully. An object experience a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitudes and direction of the velocity. If no, provide a reason. What is the meaning of the question? First, all of you read question very carefully. एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नेट जीरो दिया हुआ है. अगर क्या ये पॉसिबल है कि वो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है वो ट्रेवलिंग करेगा एक नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ? अगर आपका आंसर यस है तो आपकी कंडीशन बताइए, क्या किस वेलोसिटी से उसमें मैग्नीट्यूड होगी और वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा? और अगर नहीं है तो इसके लिए भी आप कारण बताइए. गिव अ प्रोवाइड अ रीज़न. तो हाउ वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ आंसर? According to Newton's first law of motion, no net external force is needed to move an object with constant velocity. So an object travels with a constant velocity, non-zero, when it experiences a net zero external unbalanced force. The magnitude of this velocity is constant and the direction is same as in the beginning. An object may also not move at all. It experiences a net zero external unbalanced force. This is because the object may be at rest in the beginning. ओके स्टूडेंट, आया समझ में ये किस कंडीशन पे लागू हो रहा है, कौन सी लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं की ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी से. तो जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा उसके साथ क्या रहेगा? नॉन जीरो मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी. तो वो कैसा एक्ट करेगा? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की तरह. ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन सेकंड क्वेश्चन. When a carpet is beaten with a stick, dust come out of it. Explain. जब कारपेट में बीटन करी हुई रही स्टिक लगी हुई रहती है और वो बीटन हो जाती है तो उसका क्या कारण रहता है? उसके आपस में डस्ट लग जाती है. What is the reason? When carpet is beaten with a stick, fiber of carpet comes in motion and dust falls down due to इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्या रीज़न रहता है कारपेट के बीटन होने का उसकी स्टिक के साथ साथ? एक ही रीज़न रहता है, मोशन. वो मोशन करता है, मूवमेंट में आता है वो. इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ मोशन एंड बिकॉज इट इज़ द ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विथ अ रोप? बस में क्यों ज़रूरी रहता है कि जो हमारा सामान है, लगेज है, उसको हम ऊपर रखें? When the bus suddenly stops, luggage may roll down and fall from the roof of the bus due to inertia of rest. Okay student, due to inertia of motion if not tied with a rope. What is the meaning of this answer? जब बस एकदम से रुकती है तो जो हमारा लगेज है वो रोल डाउन होके घूम घूम के फॉल डाउन हो जाता है, नीचे गिर जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन और इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ मोशन. ओके स्टूडेंट, नाउ कम विथ लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस. द बॉल कम्स टू रेस्ट. The ball slows to a stop because. Students, this is a objective type question. So there are 4 objectives and 4 options are given below. Choose one correct objective. Choose or any one answer.
which is correct for all of the above. A. The batsman did not hit the ball hard enough. B. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. C. There is a force on the ball opposing the motion. And last one is D. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. First, you have to read this question very carefully. A batsman hits a cricket ball when then roll a level ground. एक बैटमैन है, उसने क्रिकेट बॉल को हिट किया. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे जाने के कवर करने के बाद द बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल जाके रेस्ट हो गई, रुक गई. द बॉल स्लो टू स्टॉप, बॉल एकदम से रुक गई. तो ऐसा किसके कारण हुआ? आंसर इज सी. ऐसा इसके कारण हुआ क्योंकि बॉल को फोर्स लग रहा है और फोर्स उस डायरेक्शन में बॉल को अपोज कर रहा है. ओके स्टूडेंट, फॉर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, 10 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन 5 से आपको जितने भी क्वेश्चन चाहिए वो आपको इसके पार्ट 2 में मिल जाएंगे. लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.